हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पढ़ना है। इनसे पहले इस चैप्टर में मैं दो मेथड्स पढ़ा चुका था। पहला साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एंड हाउ वी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू ग्राफिकल्स मेथड। ओके, आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स किनको बोलते हैं? आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट linear means single line, it stands for single. Okay, one. Equations means I have told you in equations there are two terms. First one is constant terms and second one is variables terms. Okay, and constant and variables terms equal to zero or any constant number. Okay, in two variables means the alphabetical terms whose value will be changed according to the equations is known as variables. Okay, for examples, if I say 4x plus 5y equal to 10, it is a linear equations into variables. Why we say it is a linear equations into variables? Just see here, x is one variable, y is another variable. Okay, it is alphabetical terms. These x and y values will be changed according to the equations, and where 4 is a constant term and 5 is also a constant term and 10 is also a constant term, which value can't be changed. If I say 4, it's always be 4. Not in other equations it be 4 5. Okay, if I say 5, it always be 5. Not even in other equations it be 10. Okay, if I say 10, it is a constant value which can't be changed in other equations. It always be going to be live as it is. Okay, so here we say that x constant terms is known as coefficient terms. Okay, constant terms is connected with x. Here in this equation we say 4 is the coefficient of x. 4 is the coefficient of x, whereas if I say 5, 5 is the coefficient of y. Constant terms also known as coefficients, and here 10, it is only known as constant. Okay, is it clear? This is a linear equations in two variables. We have must remember that the power of variables terms will be 1. Here we see that variables of power terms x is 1, y is 1, which is not written here. क्लियर है सबको? जो वेरिएबल्स टर्म्स का जो पावर होता है वो क्या होता है? हमेशा 1 होता है। किन में? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स होना चाहिए। ये इक्वेशन में भी क्या है तुम्हारा? दो वेरिएबल्स है। कौन कौन? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या वेरिएबल्स है? अल्फाबेट है। इनका वैल्यू क्या होगा? इक्वेशंस के अनुसार चेंज होगा, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? नाउ कम, I have told you here we have to learn about determinants. What do you mean by determinants? Here A, B, C, D are, what is this? These are constant terms. These represent constant terms. When these constant terms are written in colon is known as determinants. Okay. For examples, first I write colons. Here constant terms A, B, C, and D, and again close the colons. In determinants, what happens if the horizontal lines, for example AB and CD, it is known as row. It is known as row. The element in a horizontal line is known as rows. Okay. When we comes another, when
vertical line comes, for example, AC, for example, AC, BD, when horizontal lines represents it as column. It is known as column. We have to remember here horizontal elements known as row, whereas vertical elements in a determinant is known as column. Is it clear? When elements are written in a vertical line, it is known as columns. When the elements are written in horizontal line, it is known as row. R-O-W, row. Is it clear? Here, just pay your attention. तो यहाँ पे क्या होता है डिटर्मिनेंट्स में, ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया सर को। अभी देखो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, मालूम क्या, एक एलिमेंट्स है, मैंने बताया कि एलिमेंट्स क्या क्या है तुम्हारा, ए बी सी और डी, ये क्या है, एलिमेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो है वो किन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी से, और बी जो है वो किन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी से। ओके, जब ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी। जब बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो उससे पहले कौन सा साइन आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का साइन आएगा। तुमको सेकेंड याद रखना है, क्या सेकेंड थिंग्स क्या याद रखना है, जब बी से हम लोग सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सेकेंड, ये क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट रो, ये क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बी क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जब मल्टीप्लाई किनसे होगा तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो से, तो क्या होगा तुम्हारा, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है तुम्हारा, उनसे पहले क्या आ जाता है तुम्हारा, माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी इंटू सी। क्लियर है, पहला ए से जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो से, मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, जब मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ईडी, और माइनस क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। ये तुम्हारा क्या होगा, तुमको ये हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आता है डिटरमिनेंट्स में, माइनस का साइन आता है। क्लियर है, उनके बाद देखो आगे क्या है, और ये डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट्स कितने हैं, ये कौन से डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट्स कहलाएगा, ये डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट्स सेकेंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, दो रो है और दो क्या है, कॉलम है। दो रो और दो कॉलम्स होने के कारण रो कितना हो गया तुम्हारा, दो, ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। कॉलम कितना हो गया तुम्हारा, सेकेंड, दो कॉलम भी हो गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड कॉलम। तो इसलिए क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉलम कितने इसमें दो हैं और रो भी कितने हैं इसमें टू है। मैंने पहले ही बताया रो किन को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा, रो कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, रो कहलाएगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। ओके,
आगे क्या है हमारा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम्स है? डिटर्मिनेंट्स किनको बोलेंगे? इनमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स क्या किनमें होंगे? एक क्लोज्ड कॉलम्स में होंगे, जिनको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, उनमें होंगे। और उनका एलिमेंट्स क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से जब फर्स्ट सेकेंड रो के एलिमेंट किनसे मल्टीप्लाई होता है? फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ पे उससे पहले क्या आ जाता है? तुम्हारा माइनस का साइन आ जाता है। ये मैंने बता दिया। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए डी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए डी माइनस बी सी से। ओके ओके। देखो डिटर्मिनेंट्स जो है वो ऑलवेज हमेशा किन में रिप्रेजेंट किया जाता है? तुम्हारा कैपिटल्स लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज भी रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल्स लेटर्स। फॉर एग्जांपल ए, मान लो डिटर्मिनेंट्स लिखना है, ए डिटर्मिनेंट्स हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल ए ब्रैकेट, उनके बाद मान लो एलिमेंट्स इनका क्या है? 4 है, 5 है, 10 है, और इधर 12 है। बोल दिया कि बताओ डिटर्मिनेंट्स ए का कितना है, तो कितना हो जाएगा? क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स का निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो क्या होगा हमारा? 4 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 48। 4 इंटू 12 को ब्रैकेट में बंद कर दो, स्मॉल ब्रैकेट। उनके बाद मैंने क्या बोला? माइनस का साइन। और उनके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 10 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये 48 माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आ गया? 48 माइनस 50 कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। ये क्या हो गया हमारा? डिटर्मिनेंट्स हो गया। क्लियर है? और ये ABCD क्या है? ये ABCD क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट टर्म्स है। क्लियर है? ओके। या फिर हम लोग इसको ABCD अभी जैसे लिख रहे हैं, मान लो मैंने लिखा A B C D, इनके जगह हम लोग आगे क्या कर लेंगे? रिप्रेजेंट इनको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? A1 B1, ये क्या हो गया नीचे? A2, और ये क्या हो गया तुम्हारा? B2। क्लियर है? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स यहाँ तक समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? और सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, ये क्या है तुम्हारा? सेकेंड कॉलम है। और रो कौन सा है? कॉलम को मैं C से रिप्रेजेंट कर दिया, और रो को रिप्रेजेंट कर दिया था, रो को R से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? और ये क्या है तुम्हारा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम्स मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? इनसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस साइन आ जाएगा। और ये क्या हो गया तुम्हारा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा?
सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ओके गाइस, नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकेंड डिटरमिनेंट्स मेथड, क्रेमर्स रूल। डिटरमिनेंट्स मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेमर्स रूल बोलते हैं। ओके, ये जो मेथड्स दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था? एक स्विस मैथमेटिशियंस था जिनका नाम क्या था? ग्रेविल्स कैमर्स था, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैमर्स मेथड बोलते हैं। क्लियर है? चलो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले इनटू वेरिएबल्स। मान लो मैंने लिखा एक लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स लिखा a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गया। और दूसरा लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं क्या? e2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। क्लियर है? इनको क्या मान लिए हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। क्या मान लिए इनको? फर्स्ट इक्वेशन। और इनको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैंने तुम लोगों को बताया था इस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जिस भी टर्म्स को, जिस भी कांस्टेंट टर्म्स को या वेरिएबल्स टर्म्स को हमको रिमूव करना है, उनका क्या देखते हैं। मान लो कि मुझे किसको रिमूव करना है? y को रिमूव करना है, तो y का वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है तुम्हारा? क्या क्या वेरिएबल्स टर्म्स है? पहला वेरिएबल्स टर्म्स क्या है तुम्हारा? b1 है। दूसरा क्या है तुम्हारा? b2 है। क्लियर है? b1 b2 क्या है? डिफरेंट वैल्यू है, ये एक दूसरे से क्या हो सकता है? कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। डिफरेंट वैल्यू है तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे वहां पे कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम लोग क्या कर देते हैं? एक दूसरे से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? जैसे b1 है तो b1 को क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन किन से मल्टीप्लाई कर देंगे? सेकंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, b2 से सेकंड वाले इक्वेशन से। और जो b2 है ये किन में है तुम्हारा? सेकंड इक्वेशन में है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे? फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे किन से? फर्स्ट वाले से, तो क्या हो जाएगा हमारा? b1 हो जाएगा। क्लियर है? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब नया इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? a1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? b1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? a1 b1 x क्या हो जाएगा? a1 b1 x प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? सॉरी, यहाँ पे b2 है तो b2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे वाला को क्या किनसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? x वाले से। b नीचे वाले को किनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 1 से। नीचे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? b1 हो जाएगा।
मैंने क्या बोला था, क्या कांस्टेंट टर्म्स जो है बी, जैसे मान लो वाई वाले को हमको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है, वाई वेरिएबल्स को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, इनके साथ जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बी1 है, बी1 किन में तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन में है, तो बी1 को किन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म्स क्या है, वाई के साथ, बी2 है, तो बी2 को किन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 x, पहला क्या हो जाएगा a1 b2 x, दूसरा क्या हो जाएगा b1 b2 y, b1 b2 y, और इक्वल टू का साइन आएगा, उनके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा b2 c1, या फिर c1 b2, c1 b2। क्लियर है। अब ये मान लो ये कौन सा इक्वेशन हो गया तुम्हारा, तीसरा इक्वेशन हो गया, जो इक्वेशन पहले से ही था, इनको कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a2 b1 x प्लस b1 b2 y, b1 b2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा c2 b1, और इनको मान लो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्व करो इनको। मैंने क्या बोला था, यदि क्या करते हैं हम लोग, मान लो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनका साइन क्या हो जाएगा, या ऐड भी कर रहे हैं तो नीचे वाला का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीचे वाला a2 b1 x का साइन कौन सा है, प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो साइन कौन सा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐड कर दो इक्वेशन, ओके लिख लो, ऐड करो कौन सा इक्वेशन, फोर्थ है, थर्ड एंड फोर्थ, ऐड थर्ड एंड फोर्थ। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो किस में लिखा जाएगा तुम्हारा, माइनस में, माइनस में, और ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो b1 b2 y, b1 b2 y दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बच गया तुम्हारा क्या, ये वाला टर्म्स, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a1 b2 x माइनस क्या हो जाएगा a2 b1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1, ये हो जाएगा तुम्हारा। अभी देखो a1 b2 x, a2 b2 b1 x, ये है, तो इनमें देखो कॉमन क्या है, कौन सा टर्म्स कॉमन है, वेरिएबल्स x जो है वो क्या है, कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और जब बाहर लेंगे तो क्या लिखेंगे, x क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारा, अंदर क्या बच जाएगा a1 b2 क्या बच गया a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है। ये हमारा क्या बच गया, अंदर बच गया, x क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, और इक्वल टू इस साइड में क्या आ जाएगा c1 b2 माइनस c2
B1। देखो यदि हम लोग B1 C2 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यदि B को हम लोग आगे भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैं बोल दिया गया B2 C1, B2 C1 वो भी इक्वल ही है, बराबर ही है किसका, C1 B2। दोनों टर्म्स को चाहे जैसे भी लिखें बात जो है बराबर ही पड़ने वाली है। क्लियर है। अभी जो कॉमन है यहाँ पे x क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है। जब इक्वल के इस साइड भेजेंगे, ये भी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म्स है और ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के उस साइड जाएगा तो किन में हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा C1 B2 माइनस C2 B1। इधर क्या है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, मैं इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितने में हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड का साइन दो और लिखो क्या है A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1। ये क्या हो गया तुम्हारा x का वैल्यू हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ तक लिख लिया। ओके, ये किन का वैल्यू हो गया तुम्हारा, x का वैल्यू हो गया, किन का वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। तो y का वैल्यू क्या होगा हमारा, y का भी वैल्यू हम लोग सेम इसी प्रकार निकालेंगे। ये x का वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यदि मान लो क्या y को कैंसिल आउट करना है, तो y को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, y को कैंसिल आउट, y को तो कैंसिल आउट किया, यदि मान लो कि x को कैंसिल आउट करना है तो क्या कर देंगे हम लोग, x को कैंसिल आउट करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा क्या है A1 है और इनका कांस्टेंट क्या है A2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको सबसे पहले क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। जब कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव करेंगे तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, A1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किन से, सेकंड इक्वेशन A2 से, और सेकंड इक्वेशन से, और A2 को किन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियर है। चलो देख लेते हैं उसको भी कैसे निकालते हैं वैल्यू। ओके, यहाँ तक लिख लिया, सब कुछ समझ में आया किस प्रकार से हुआ, आगे देखते हैं। तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से तुमको y का भी वैल्यू निकाल लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये तुम लोग घर पे अपना प्रैक्टिस करना किस प्रकार से y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ बस। सिमिलरली y का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 C2 A1 C2 A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A1 B1। क्लियर है। ये हमारा वैल्यू किनका हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जिस प्रकार से x का वैल्यू निकाले उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, y का भी वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है।
अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखो y तक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब इनको देखो रिमेंबर याद करने के लिए तुमको मालूम क्या, डिटर्मिनेंट्स को शॉर्टकट, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं रिमेंबर करने के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लो। हमारा कौन कौन सा टर्म्स आया था, C1 B1 देखो हमारा क्या था, C1 था B1 C1 B2 माइनस C2 B1 था, और दूसरा क्या था A1 B2 माइनस A2 B1 था, और एक टर्म्स क्या था हमारा, सब में देखो जब x लिखे थे तो x का वैल्यू क्या आया था हमारा, x का वैल्यू क्या आया था हमारा C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन क्या था तुम्हारा A1 B2 माइनस A2 B1 था, ये था, और y का वैल्यू क्या था A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन क्या था A1 B2 माइनस A2 B1, ये वैल्यू आया था देखो A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्या है तुम्हारा, दोनों में y और x में दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखे हैं, एक बार ही लिखे हैं यहाँ पे। क्लियर है, ये क्या आ गया कॉमन आ गया, और वैल्यू चेंज किनका हुआ x में, नीचे वाला क्या रहेगा हमेशा x और y में दोनों में कॉमन रहने वाला है, तुमको क्या करना ऊपर वाले वैल्यू को बस क्या करना है याद करना है। ऊपर वाले वैल्यू क्या आ रहा है x के लिए तुम्हारा C1 B1 B2 और माइनस C2 B1 आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा A1 C2 माइनस A2 C1 आ रहा है किनमें y का वैल्यू में, और नीचे क्या है A1 इंटू B2 माइनस A2 माइनस A2 इंटू B1। ओके, ये क्या है तुम्हारा कॉमन है x और y में। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो उनसे। हमारा इक्वेशंस क्या था, इक्वेशंस हम लोगों ने क्या लिया था, A1 लिया था A1x प्लस B1 y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स था क्या हमारा C1, ये हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था ये, और दूसरा सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा A2 x प्लस B2 y इक्वल टू क्या था C2 था, ये क्या था तुम्हारा हमारा सेकेंड इक्वेशन था।
ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अभी देखो x का कोफिशिएंट क्या क्या है तुम्हारा, x का कोफिशिएंट क्या है a1 है और a2 है। b का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, y का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा b1 है और b2 है। और कांस्टेंट टर्म्स क्या है तुम्हारा c1 है और c2 है। क्लियर है। तो x का कोफिशिएंट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कॉलम में हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में a1 क्या हो गया सबसे और नीचे क्या हो गया तुम्हारा a2। ये किनका कोफिशिएंट हो गया तुम्हारा, x का कोफिशिएंट हो गया, ये किनका कोफिशिएंट हो गया, ये x का कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है। और दूसरा y का कोफिशिएंट क्या हो गया तुम्हारा, चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, x का कोफिशिएंट क्या हो गया तुम्हारा a1 a2 और y का कोफिशिएंट क्या हो गया तुम्हारा b1 b2। तो y का कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं हम लोग b1 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 b2 और कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गया हमारा c1 c2। कांस्टेंट टर्म्स क्या हो गया हमारा c1 c2। इनको भी क्या करो ब्रैकेट में लिख लो। क्लियर है। इतना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं जो भी टर्म्स है उनको हम लोग जैसे यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या है x का वैल्यू क्या है तुम्हारा, x का वैल्यू क्या है तुम्हारा c1 b2 है माइनस c2 है b1 है अपॉन क्या है तुम्हारा a1 b2 है माइनस a2 है और इंटू b1 है। देखो शुरू में मैंने डिटरमिनेंट्स में क्या बताया था तुम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बताया था। क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होता था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किन से मल्टीप्लाई होता था सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम किन से मल्टीप्लाई होता था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। तो सेम यहाँ भी क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई ही है, क्या है मल्टीप्लाई ही है। तो C1 B2, तो इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई में C1 B2 कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, जब इनको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला टर्म्स है तो क्या होगा यहाँ पे C1 होगा ये और B2 किधर होगा, यहाँ पर होगा सेकेंड रो में होगा या फिर सेकेंड कॉलम में होगा, यहाँ पे क्या होगा B2 होगा। मैंने क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया था, तो ये क्या हो गया C1 यहाँ पर हो गया और B2 यहाँ पर हो गया। C1 क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो गया और B2 क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो गया। क्लियर है। और उनके बाद मैंने क्या बताया था C2 और माइनस क्या तुम्हारा C2 और B1। तो मैंने क्या बताया था माइनस का साइन किसके लिए आता है, किसके लिए आता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए क्या आता है तुम्हारा माइनस का साइन आता है। तो ये क्या होगा C1 है तो और ये क्या है B2 है, तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है B1 B2 बाद में आया है, तो सिंपल सी बात है B2 है यहाँ पे तो इसके ऊपर क्या होगा तुम्हारा B1 होगा, इधर क्या होगा तुम्हारा C2 होगा। क्लियर है। इसको क्या कर दो ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई करता है तो क्या सेम आता है क्या C1 इंटू B2
क्या है, C1 इंटू B2 पहला है तुम्हारा। उनके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा तुम्हारा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 होगा। तो देखो वही सेम है क्या, x का वैल्यू C1 इंटू B2 माइनस C2 इंटू B1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो उनके बाद क्या है तुम्हारा, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन दो। अभी देखो नेक्स्ट में फिर से क्या करो, ब्रैकेट डालो। अब फिर से देखो A1 B2 है, तो सिंपल सी बात है, A1 है कहाँ पे, फर्स्ट रूम होगा तुम्हारा यहाँ पर, और B2 किधर होगा तुम्हारा, इधर कहीं भी होगा। क्लियर है, B2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या हो गया, B2 हो गया। फिर माइनस का साइन है, तो सिंपल सी बात हो गया कि क्या होगा, A2 क्या कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा A2 है, और उनके बाद इनके ऊपर क्या है तुम्हारा B1। क्लियर है, सेम देखो ये किस फॉर्म में हम लोग लिख दिए, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। ये किनका वैल्यू हो गया तुम्हारा, x का वैल्यू हो गया। क्लियर है, सेम y में क्या होगा तुम्हारा, y का वैल्यू कितना आया है तुम्हारा, चलो y का भी देख लो इधर। ओके, y का वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये है। ओके गाइस, तो y का वैल्यू क्या है तुम्हारा, A1 C2 है, माइनस क्या है A2 C1 है। और तो इसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, y लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स का साइन दो, क्या बोला है A1 C1, A1 C2, तो ऊपर में क्या हो गया तुम्हारा A1 हो गया, सिंपल सी बात है। C2 किधर होगा तुम्हारा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में होगा, यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा C2 आ गया। माइनस का साइन है, उनके बाद क्या है A2, तो A2 कहाँ पर होगा तुम्हारा A1 के नीचे होगा, ये क्या हो गया तुम्हारा A2 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, और C1 कहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। क्लियर है, ये क्या हो गया तुम्हारा y। और नेक्स्ट नीचे क्या हो गया तुम्हारा ए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा अपॉन, क्या हो जाएगा ए क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ए हो गया, बी है तो बी कहाँ पर होगा तुम्हारा क्रॉस में, जस्ट इसका क्रॉस में देखो आगे क्या हो गया तुम्हारा, ये बी हो गया, और A1 हो गया। A1 के नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा A2, और B2 के ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा B1। क्लियर है, ये क्या होगा तुम्हारा x और y का वैल्यू हो गया। और तुमको याद क्या रखना है डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, ये वाले वैल्यू को तुमको क्या करना है, याद रखना है। क्या किस प्रकार से निकालते हैं, x का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा C1 C2 अपॉन B1 B2 अपॉन क्या हो जाएगा A1 A2 B1 B2। ओके, और y में क्या रखना है A1 A2 C1 C2। अभी देखो रिमेंबर हम लोग याद कैसे रखते हैं वो देख लो। जो नीचे वाले टर्म्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चलो इसको करते हैं।
गाइस अभी देखो ये वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म्स है जो कॉमन है सब में, क्या A1 A2, तो इनको हम लोग किन से रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। D वाले टर्म्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, D डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया तुम्हारा A1 A2 B1 B2। क्लियर है, ये क्या हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स फॉर्म हो गया। और x वाले टर्म्स को हम डिटर्मिनेंट्स x को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dx। और dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा c1 c2 b1 b2। ये क्या हो गया तुम्हारा dx हो गया। dy क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो y का अपर टर्म्स है उनको लिख दो, डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा a1 c1 a2 c2। क्लियर है, ये क्या हो गया तुम्हारा dy हो गया। और जब हम इसी को लिखते हैं x फॉर्म में, तो x फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देख लो, यदि x लिखना रहता है तो कैसे लिखेंगे, x हम x का वैल्यू लिखना है तो क्या लिख देंगे, x इक्वल टू dx अपॉन d। क्या लिखेंगे, dx अपॉन d। और y का वैल्यू कैसे लिखेंगे, dy अपॉन d। बात बराबर ही पड़ने वाला है। dy का वैल्यू क्या है तुम्हारा a1 c1 a2 c2, और dx का वैल्यू क्या है c1 c2 b1 b2। क्लियर है, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम लोग रिमेम्बर कैसे रख सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, तो पेपर में आसानी से कैसे लिख सकते हो वो देख लो। टाइम लगेगा बस, और ये देखो हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स कैसे लिखा पड़ता है हमारा, ए का टर्म्स क्या हो गया तुम्हारा, एक्स का कोफिशिएंट्स क्या हो गया तुम्हारा a1 a2, ये किन का टर्म्स हो गया, एक्स का
बी का कोफिशिएंट्स क्या हो गया तुम्हारा B1 और B2, ये बी का कोफिशिएंट हो गया, और सी का कोफिशिएंट्स क्या हो गया तुम्हारा C1 C2, ये किसका कोफिशिएंट हो गया तुम्हारा सी का कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है। जब हम लोग x के लिए लिखते हैं, मान लो जब x का टर्म्स लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे x का कोफिशिएंट्स क्या है तुम्हारा A1 A2 है, क्या है A1 A2 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं A1 A2 के जगह पे ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, कौन सा कांस्टेंट टर्म्स C1 C2, A1 के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं C1 C2, क्योंकि x का कोफिशिएंट्स क्या है तुम्हारा, x का कोफिशिएंट्स क्या है A1 A2 है, तो इनके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे A1 A2 के जगह पे C1 C2, और बाकी सामने वाला टर्म्स कौन सा है उनका B1 B2, ये राइट डाउन कर देंगे B1 B2। क्लियर है। अपॉन जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स जो है कौन सा सेम लिख दो A1 A2 B1 B2। क्लियर है। A1 A2 B1 B2। क्लियर है। क्या करते हैं, जिनका लेते हैं x लेते हैं तो x के जो कोफिशिएंट क्या होता है तुम्हारा A1 A2, तो A1 A2 का आगे हम A1 A2 को हटा के एलिमिनेट करके क्या लिख देंगे वहाँ पे C1 C2, और उनके आगे क्या B1 B2 है तो वो सेम रह जाएगा। क्लियर है। यदि मान लो क्या जब हम लोग y लेंगे, ओके, जब हम लोग क्या लेंगे y लेंगे, जब हम लोग y लेंगे तो क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट्स क्या है B1 B2 है, तो B1 B2 के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे बस C1 C2 रख देंगे और सेम इट इज लिख देंगे, तो वो किनका वैल्यू आ जाएगा हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से तुमको क्या करना है लर्न करना है। चलो y का वैल्यू लेते हैं, y का वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारा, y का कोफिशिएंट्स क्या है हमारा, क्या है y का कोफिशिएंट्स क्या है B1 B2 है, तो B1 B2 से पहले क्या है A1 A2 है, तो पहले लिख देंगे क्या A1 A2, A1 A2 उनसे पहले आता है B1 से, A1 A2, और B1 B2 की जगह पे क्या लिख देंगे C1 C2, C1 C2 हो गया ये। अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा सेम इट इज लिख दो A1 A2 B1 B2। क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू। इस प्रकार से तुमको क्या करना है लर्न करना है। क्लियर है। तो वैल्यू यदि तुमको याद नहीं भी है तो क्या करना है, जो जिनका कोफिशिएंट ले रहा है, जिनके लिए जिनका वैल्यू निकालना, जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, उनका कोफिशिएंट्स की जगह पे क्या कर देना है तुमको C1 C2 को पुट कर देना और सेम इट इज लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स मेथड हो जाएगा। क्लियर है। घर से 1.2 1.3 प्रैक्टिस करके लाना। यदि कोई प्रॉब्लम्स होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है। थैंक यू आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, thank you for joining, please subscribe our channels, likes and share, thank you। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।